टेलीकॉलिंग एज अ जॉब, क्या आप उसमें करियर बना सकते हैं, क्या आप उसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ इसी पे है, जहां मैं बात करने वाला हूं बहुत सारे लोगों से जो कस्टमर फेसिंग रोल्स में हैं, जैसे कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, टेलीकॉलिंग और चैट प्रोसेस वाले लोग। उनसे जानूंगा मैं कि वो कितनी सैलरी कमाते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हाय, मेरा नाम निहाल है, आपका नाम क्या है? My name is Nihal too. निहाल, व्हाट डू यू डू? I am a service advisor in British Airways. क्या आपको अपनी जॉब पसंद है? Well, right now I'm in training, but अभी तो बहुत मजा आ रहा है. व्हाट डू यू डू? So I'm a customer care executive here. I work here in Concentrix. डू यू लाइक योर जॉब? It's basically okay. Right now I am just leaving out from this company, so I'll say yeah. Somebody has resigned. ये गड़बड़ है बाबा। हाय, मेरा नाम निहाल है और आपका नाम? अभिषेक सिंह चौहान। काफी लंबा नाम है। चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। अभी आप क्या करते हो यहाँ? I am working in CNX as a chat support agent. आपका काम क्या रहता है यहाँ? Actually, we are handling orders, inventories, payment related issues. आपको अपनी जॉब पसंद है? मतलब ठीक है। भाई शक्ल उतर गई है। क्या आप भी बिल्कुल ऐसे करते हो कि जमतारा की तरह भी कुछ करते हो? नहीं। हाय, मैं पुष्पा बोल रही हूँ। हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ तिखरी बैंक से। ऐसे कुछ स्पेशल स्किल्स है नहीं इसलिए मेरे पास, इसलिए आई एम वर्किंग इन CNX टू बी वेरी ऑनेस्ट। तनवीर जी, आप क्या करते हैं? I am an executive senior advisor. आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता लगा? I was placed from college and after 6 months due to some reasons I had to leave. Then one of my friends told me that there is a consultancy, you can walk in there. So I started with Virgin Media back in 2009. I'm a SME in Adobe. SME Subject matter expert. जॉब रोल क्या रहता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का? To handle escalated cases, we have to handle the customer, their technical queries. आपको ये जॉब कैसे मिली थी? I'm a developer by profession, full stack developer by the way. So I was like working with Concentrix first. That's why I heard about Adobe and then it got started. I am working for British Airways. That is for customer service. आपकी जॉब में करना क्या होता है? Basically, we have to give customer support service to all our UK and US based customers for any flight cancellations, reservations, or we are providing them solutions for their hotels as well. आपको अपनी पहली जॉब के बारे में कैसे पता लगा? Well, I got to know it from Apna. Really? Yeah, I Apna got. app? Yeah, the Apna app. I was just scrolling through the Apna app and I found that job suitable for me and I applied through the app only. There was a consultant too there. She got me placed into my first job in Amazon. दोस्तों, अपना ऐप से अमेज़न में भी जॉब लगती है, मैंने बताया है। आपको ये जॉब कैसे मिली? One of my friends is working here. He referred me as there are 2 or 3 rounds of interviews and after that I got selected here. एवरेज सैलरी फॉर अ फ्रेशर कितनी रहती है आपकी इंडस्ट्री में? There are some processes which is giving around 23 to 24 average. If you go to Bank of America and other processes, they are providing you 30 to 35k. What do you think? What kind of skill sets are required for a job like yours? Good hold on the language, being a helpful person, getting the client to know their emotions and connecting with them. आपकी जॉब का फन पार्ट क्या है? जैसे कस्टमर्स बहुत सारे आ जाते हैं और वो देते हैं कि भाई हमारे को ये प्रॉब्लम है, रीजन देते हैं जो जेन्युइन नहीं होता। लगता है कि हाउ कैन, मतलब बंदे कितना कैसे बोल सकते हैं। There is a very funny incident happened with me when I was giving the interview for Amazon. Interviewer asked me the question that as you are a BTech graduate and you are opting for a customer service profile, why is it so? I gave him answers like I like this profile, I'm good at it and that's why I want to be in this role actually. But he said I'm not getting the suitable answer. Then I switched everything from formal to informal and said BTech was just like a half girlfriend for me and I loved BTech very much but it actually didn't love me back. So साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। We have to interact with other people's no. So कभी-कभी हमें ऐसी स्टोरीज सुनने को मिलती है we can't even imagine. Like collections में है हम लोग तो हमें आगे के लिए मिल जाता है कि हाँ हम भी ऐसा बहाना बना सकते हैं। आपकी जॉब करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल सेट्स क्या होते हैं? You have to be experienced to work here. You have to be good with data also, communications and everything. आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपको कुछ सिखा रहा है तो आपको वो सीखने की पावर होनी चाहिए। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो ट्रेनिंग में 4-5 दिन आते, नहीं समझ आता, चले जाते हैं। मैंने एक चीज़ देखी, अगर आपके सीखने की पावर है तो आप ये जॉब कर सकते हैं। First is communication, to be honest. Second is customer handling. Like you have to be concerned about the customer, right? You have to know what customer is capable of. Don't drag the customer in all of the technical stuff because it will get frustrated then. जब इंटरव्यू हुआ, what are the skill sets they judge you on? I am a customer service agent, so they basically judge us on our comm skills, how we interact with people, and basic English knowledge. इसके अंदर एवरेज सैलरी कितना रहता है? My average salary, to be honest, is 60 to 70. If you are a fresher, you can earn up to
25,000. That's the starting package. And with time you gain experience, you can get up to all the way to 40,000. We were hired in 40 to 50k and the ops manager is getting maybe 80-90k. कभी कोई कस्टमर बहुत ही एंग्री हो जाता है, तो उसको हैंडल कैसे करते हो आप? वी हैव अ डेडिकेटेड लाइन, आई एम रियली सॉरी। जब तक सॉरी बोलते रहते हैं, जब तक या तो वो इरिटेट और ना हो जाए या वो ये समझ जाए कि ये सॉरी ही बोलता रहेगा जब तक मैं इससे ढंग से बात नहीं करूँगा। आपने एजुकेशन में क्या किया था? I've done BSc IT basically. It was from Graphic Era University, Dehradun. I have done actually journalism and mass communication as a degree. By within next month this time I would be in London doing my logistics and supply chain. I have done graduation from Venkateshwar University, DU, BTech there. क्या आपका भी सपना है टोरंटो जाने का? No, I had got this opportunity. मैं बहुत बार मिल चुका है. So I've told my family हमारा देश बहुत अच्छा है, हम यहीं रह के करेंगे. एक एडवाइस जो फ्रेशर्स हैं अभी या जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, आप उनको क्या दोगे? मेरी एक एडवाइस है, हर एक बंदा यहाँ पे ये सोच के आता है मुझे इसी में रहना है, वो कुछ और सोच के आते होते हैं, लेकिन वो उनको पहले नहीं मिलता। पर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको यहाँ जॉब मिल रही है ना, करो थोड़े टाइम, आपको अगर नहीं अच्छा लगा और आप जिस मेन मोटिव अगर आपको अचीव हो जाता है, एटलीस्ट यू हैव योर एक्सपीरियंस विद यू। अगर आपकी किस्मत में अच्छा लिखा होगा तो आप यहीं पे इतनी जल्दी ग्रो करोगे, खुद ही यकीन नहीं होगा उस चीज़। इफ यू आर वर्किंग इन चैट प्रोसेस और कॉलिंग प्रोसेस ना, तो आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। Don't work for salary. वेरी स्मार्ट एडवाइस। आशुतोष, आप क्या करते हैं? आई एम वर्किंग एज अ क्वालिटी ऑडिटर इन कॉन्सेंट्रिक्स। आशुतोष, आपका थोड़ा काम के बारे में बताइए। ऑडिटर वैसे ही डर लगता है मुझे तो। बीपीओ में हमारा चैट्स, ईमेल्स एंड वॉइस प्रोसेस इज देयर आल्सो। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि यूथ है बिटवीन 18 टू 22 एजेस, सो वो लोग चैट्स लेते हैं, कॉल्स लेते हैं। तो हमारा कनेक्ट जो होता है बेसिकली यूएस एंड कनाडा के क्लाइंट्स के साथ होता है। तो व्हाट आई डू इज दैट मैं इंश्योर करता हूँ कि वो जो कनेक्ट कर रहे हैं क्लाइंट्स के साथ, वो कनेक्ट सही से हो। आप मॉनिटर है फ्लोर के? इनडायरेक्टली कह सकते हो, बट नॉट अ स्ट्रिक्ट वन। मेरे को लग रहा है आपने बहुत कुछ बता दिया। अगर 2 लाइनों में बताना हो आपका रोल, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? आई इंश्योर कि कोई एम्प्लॉय गलती ना कर रहा हो फ्लोर पे। भाई, आप तो बिल्कुल ही क्लास टीचर या मेरे को मॉनिटर की याद दिला रहे हो। विनय जी, आपका क्या काम है? मैं आईजीटी में यूनाइटेड एयरलाइंस प्रोसेस में लीड एसोसिएट काम कर रहा हूँ। 3 साल हो गए मुझे, स्टार्ट भी यहीं से ही किया था करियर। आप कस्टमर फेसिंग रोल में है? यस। दोस्तों, हम हिल इसलिए रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत है। रात को ये 2:45 बजे शूट हो रहा है, तो इसलिए ज्यादा हिल रहे हैं। मैं बैंक में जॉब करता हूँ, एचडीएफसी बैंक में। डेजिग्नेशन क्या है आपकी? ईएम है सर। आपका काम क्या रहता है? मेन जो मेरा वर्क रहता है वो रहता है जैसे करंट अकाउंट में सपोज कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स हैं, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या पार्टनरशिप है, तो उसमें कभी कोई डायरेक्टर ऐड हो रहा है, कभी कोई डायरेक्टर जा रहा है, कोई पार्टनर से ऐड हो रहा है, कोई मर गया है या कुछ भी हो गया है। बैंक में जो उसके जो अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं सर, उनमें उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है, वो मेरा मेन पर्पस होता है। बेसिकली एक एज अ रिलेशनशिप मैनेजर। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जॉब पाने के लिए किसको क्या स्किल सेट्स चाहिए? तो एक एक्सपीरियंस के साथ साथ यू हैव टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, यू हैव टू नो ऑल योर KRAs, KPIs, आपका क्या क्या रोल होना चाहिए। एक एम्प्लॉय को अगर कोई नई कंपनी ज्वाइन करता है तो उसको स्टेबल होकर एक जगह काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना एक्सपीरियंस लेटर लेके कहीं जाते हो ना, तो दूसरी कंपनी ये देखती है कि आपने कितने टाइम काम किया हुआ है कंपनी में। You have to be very polite, be very energetic at the same time. ग्रेजुएट चाहिए और अगर ट्रैवल फील्ड का है तो रेफरेंस मिलता ही है। बट अगर कोई ट्रैवल फील्ड का नहीं है तो उनको क्या स्किल सेट चाहिए होते हैं? इंग्लिश अच्छी और ग्रेजुएट, दैट्स इट। आपको लगता है कि यहाँ पे अपना करियर बनाया जा सकता है? काफी अच्छे करियर बन सकता है बैंक के अंदर। बैंक में सिर्फ प्रोफाइल होती है अपनी, स्टार्टिंग में एग्जीक्यूटिव, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव, देन AM, देन DM, फिर M ग्रेड, देन ABPB, इस तरह करके सर उसके बाद भी कम से कम 10 ग्रेड और हैं। आपके प्रोफेशन में क्या एवरेज सैलरी रहती है? डिफरेंट होता है, किसी का 25 भी हो सकता है, किसी का 50 भी है। 5 साल में मैंने जब देखा बैंक के अंदर ऐसे बंदे भी हैं जिसकी सैलरी सर 50-60 है, और मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसकी 5 साल में सैलरी वहाँ पे 1.5 लाख भी है। जो फ्रेशर्स हैं उनकी अराउंड अबाउट 15 to 18,000 होती है। उसके बाद अदर पर्क्स होते हैं, इंसेंटिव अच्छा है, रिफंड्स में तो हमेशा ओवर टाइम चलता है, तो सबकी बल्ले बल्ले ही रहती है। Average salary will go around 35 to 45k, excluding incentives. अगर किसी के पास 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है BPO इंडस्ट्री का, वो कितना कमा सकता है 5 साल बाद? 70,000 इजीली। अगर वो वॉइस प्रोसेस में है? वॉइस प्रोसेस में मोर देन लैक्स भी हो सकता है। वाओ! 10 साल बाद क्या वो करोड़पति बन सकते हैं? करोड़पति बनने के लिए आपको स्टार्टअप जरूर करना पड़ेगा, अपना एक साइड सोर्स ऑफ इनकम रखना पड़ेगा, करोड़पति नहीं बन सकते। What do you like about your job? It's basically helping someone. यहाँ पे बहुत एक सेटिस्फैक्शन है, अगर हम गलत भी कर रहे होंगे तो हमको गाइड करने वाले बहुत सारे लोग हैं। And what do you hate about your job? I really don't hate anything about my job. पहले कोई इंसान मिला है कि who doesn't hate? There is actually nothing here Oh, you are the second hate person. to say about it. If you love your work, there
will be nothing that you can say that is really bad about it. जब कस्टमर हमारे पास एकदम थक हार के आता है ना, बहुत बुरा लगता है कि यार कस्टमर के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। हर कस्टमर को सेटिस्फाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप जब करियर बना रहे थे या जब ग्रेजुएट किया, अगर कोई आपकी लाइफ में वहाँ पे होता गाइड करने के लिए, क्या आपको लगता है कि आपका करियर और बेटर हो सकता था? अगर मेंटोर नहीं है, आप रैंडमली अप्लाई कर रहे हो तो चीजें आएंगी लाइन पे, बट इट विल टेक सम टाइम। अगर मेंटोर होगा तो हाँ, आप जल्दी सक्सेस की तरफ आप बढ़ोगे और जल्दी उस चीज को अचीव कर सकते हो। किसी को ऐसी जॉब्स कहाँ मिलती है, नौकरी है, मतलब अपना ऐप पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे ऐसे होती है? अपना ऐप पे दिखती है IGT के बहुत जॉब्स, नौकरी पे भी मिलती है, बट अपना ऐप पे ज़्यादा देखी है मैंने। क्या बात है, ये मेरे को अच्छा लगा सुनकर। इतनी खुशी मुझे। बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ पर BPO सस्टेनेबल नहीं है, क्या यहाँ पे लोग अपना करियर बना सकते हैं? अगर आप स्टेबिलिटी रख रहे हो जॉब में अपनी, तो बिल्कुल आप एक अच्छा करियर यहाँ से लेके निकल सकते हो। Yes, surely they can. This is basically something which we can go ahead and take our career towards management as well. आपके फ्लोर पे सबसे कॉमन वर्ड कौन सा यूज होता है? सॉरी सॉरी। Sorry. सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा सर ये। Please revert back to that email. CSAT, like 5-star reviews. What is your customer satisfaction like? Is it good? Is it bad? Is it click? It is 98 right now. Whoa, that's a high score. अगर आपको भी अपना करियर ऐसे ही बनाना है टेलीकॉलिंग में, तो जरूर चेक कीजिए अपना एसेंट कोर्स। अपना एसेंट की कुछ खासियत है, जैसे कि आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगी, 21 डे का प्रोग्राम है और यहाँ पे आपको चांस मिलेगा कुछ बड़ी कंपनीज के साथ काम करने का भी। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके चेक करिए और देखिए कि क्या आप एलिजिबल है या नहीं है। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट जरूर करते रहिए।